All right, dear student, this is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. Now, let's start the session. It's time to start. It's 9 o'clock. So, let's begin the session now. Today, what we are going to do, we are going to start chapter number 17, that is perfect tense, present, past, and future, right? Means what we are going to discuss present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. Three of the tenses we are going to study in this chapter, right? I hope that is clear. Now, moving to the vocabulary part, in today's session, we will be doing only vocabulary, and then in further sessions, we will be understanding or we will be uh, discussing about the perfect tense, that is of present, past, and future. Right? All right. Let's begin the session now. Just a second, dear students. Yeah, sorry for disturbance, dear students. So we are ready to start now. The first word we have is DECADE, decade. The first word we have is decade, right? Decade means what? A period of 10 years. Decade means क्या होता है? A period of 10 years. यानी कि जो 10 years का पूरा टाइम होता है ना dear students, उसको हम क्या कहते हैं? Decade बोलते हैं. Like 2001 to 2010, that was one decade, right? Then 2011 to 2020, that was the another decade. Are you getting my point, what I'm trying to say? Just a second, still so many students are coming. Dear students, please try to come on time. Those who are coming now, please try to come on time. All right, so let's move on. Yeah, so I was telling you decade means a period of 10 years. Period of 10 years means what? 10 years का जो span होता है उसको हम क्या कहते हैं? पूरा decade कहते हैं, right? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं like 2011 to 2020, that was one decade, है ना? तो लास्ट ईयर 2020 जब ओवर हुआ तब वो पूरा ईयर एंड नहीं हुआ था बेटा, वो पूरा का पूरा डिकेड एंड हुआ था। क्यों? क्योंकि 2011 से लेके 2020 तक पूरा का पूरा एक डिकेड चलता है, right? So period of 10 years. I hope the first one is clear, decade is clear. Next one is jigsaw. Jigsaw is puzzle. आपने देखा होगा आपकी बॉक्सेस पे भी कई बार इस तरीके से पजल्स आते हैं कि आपको अरेंज करना है। ऐसे क्यूब्स रहेंगे, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर्स और क्यूब्स रहते हैं, उन पे डिफरेंट पिक्चर्स बनी हुई रहती हैं, आपको उनको शिफ्ट करना पड़ता है, राइट? कि है ना, इसको अप साइड कीजिए, इसको डाउन साइड कीजिए, इसको ऊपर लेके जाइए, इसको इधर शिफ्ट कीजिए, फिर उसको आगे की तरफ इस तरफ शिफ्ट कीजिए। इस तरीके से आपको है ना पजल्स देखने को मिलते होंगे आपके बॉक्सेस में, और इस तरीके से काफी सारे पजल्स होते हैं, राइट? सो दैट पजल इज व्हाट? दैट पजल इज जिगसॉ। उस पजल को क्या कहते हैं? जिगसॉ कहते हैं। ठीक है, आप सिंपली गूगल पे टाइप करके भी चेक कर सकते हैं इसको, जिगसॉ जिगसॉ पजल। और लेट मी शो इट टू यू, जस्ट ए सेकंड डियर स्टूडेंट्स, लेट मी शो इट। Wait for 1 second. Wait for a second. Yeah, I hope that my screen is visible to you. This is jigsaw game, dear students. जिस तरीके से आपने puzzles खेले होंगे, ये jigsaw puzzle होता है, ठीक है? This is what your jigsaw puzzle is. इसमें आपको different different shapes रहते हैं, इनको आपको arrange करना होता है और एक proper shape बनाना होता है, right? चलिए, now back to our vocabulary part. So jigsaw is what? Jigsaw is a puzzle, right? या जिक्सॉ इज पजल। जिक्सॉ क्या होता है? पजल एक गेम होता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ब्रिलियंट। वर्ड नंबर 3 वी हैव इज ब्रिलियंट, BRILLIANT। ब्रिलियंट इज मैग्निफिशियंट और स्प्लेंडेड, यानी कि जो चीज बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूनिक, मतलब बहुत वंडरफुल होती है, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? ब्रिलियंट यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज यू आर वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग अ शो, है ना? आप कोई शो देख रहे थे, या आपने कोई सिंगिंग का शो देख रहे थे, या कोई डांसिंग का शो देख रहे थे, तो सिंगिंग के डांसिंग के शो में आपने क्या देखा कि परफॉर्मेंस थी बहुत ही अच्छी, है ना? बहुत अच्छा किसी ने सॉन्ग गाया है, या किसी ने बहुत ही अच्छा डांस किया है। सो व्हाट यू कैन से, व्हाट ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, व्हाट यू कैन से, व्हाट ए ब्रिलियंट
performance, right? Or you can say what a magnificent performance, what a splendid performance, right? So in that way you can, मतलब those type of words you can use, ठीक है? या let's suppose आप कहीं घूमने गए, you went to a trip, you went to a picnic, और आपने वहां पे क्या देखा, वहां पे आपने बहुत ही अच्छी सीनरी देखी, या बहुत ही अच्छा कोई व्यू देखा आपने, so there also you can use what, brilliant, ठीक है? What a brilliant view, what a magnificent view, what a splendid view in that sense, right? Okay, moving on. Next word we have is word number 4, that is laundry. 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 Laundry means what? Clothes that need to be washed. वो clothes जिनको wash करना necessary है, यानी कि ऐसे clothes जिनको आपने वॉशरूम में रखा है या बाथरूम में रखा है, टू वॉश देम, ठीक है? आपने लॉन्ड्री वाले को दिए हैं क्या करने के लिए? उनको वॉश करने के लिए, ठीक है? तो दोज आर योर लॉन्ड्रीज. लॉन्ड्रीज मीन्स व्हाट? द क्लोथ्स विच नीड टू बी वॉश. ऐसे क्लोथ्स जिनको वॉश करना नेसेसरी है अभी, या जिनकी वॉश करने की जिसको नीड है अभी, ठीक है? Why students are still coming? Don't you know the timing of class? I sent you link just 5 minutes before the class, and you have to click on that, and you have to enter the class at the sharp time, 9 o'clock. All right. Next time I will not allow you in the class if you come late, right? चलिए, so we were on the word number 4, that is laundry, ठीक है? word number 4 पे थे हम लोग. laundry. laundry के लिए मैंने आपको कहा the clothes that need to be washed, वो clothes जिनको wash करने की need है. Okay, word number 5, that is librarian. Librarian means what? Library in charge. जो library के इंचार्ज होते हैं ना dear students, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? library इंचार्ज बोलते हैं. As in your school there is a ma'am who assists the library, who is in charge of library, right? वो क्या करती हैं? लाइब्रेरी की इंचार्ज है वो, ठीक है? तो आप उनके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? लाइब्रेरियन वर्ड यूज किया जा सकता है. उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जा सकता है? लाइब्रेरियन वर्ड को यूज किया जा सकता है, ठीक है? लाइब्रेरियन मीन्स व्हाट? जो कि लाइब्रेरी को असिस्ट करती हैं या लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं, उनके लिए क्या यूज होता है डियर स्टूडेंट्स? लाइब्रेरियन, राइट? चलिए, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डीथ्रोन. डीथ्रोन मीन्स व्हाट? रिमूव फ्रॉम द पावर. देखिए, थ्रोन मीन्स क्या होता है? राजगद्दी, ठीक है? थ्रोन मीन्स क्या होता है? यानी कि राजा की पोस्ट के लिए थ्रोन कहा जाता है. जो राजा का जो मुकुट होता है उसको थ्रोन कहा जाता है, और आगे डी लगा देंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा. देखिए, थ्रोन मिलना मीन्स पावर मिल जाना. थ्रोन मिलना मीन्स क्या होता है? पावर मिल जाना. एंड डी थ्रोन मीन्स रिमूव फ्रॉम दी पावर, पावर से रिमूव कर देना. डी थ्रोन मीन्स क्या होता है? रिमूव फ्रॉम दी पावर, किसी को पावर से रिमूव कर देना, दैट इज डी थ्रोन, राइट? Okay, next word we have is detective. Detective we all know, the one who investigate, that means investigator, ठीक है? आप लोग CID वगैरह देखते होंगे, आप लोगों ने काफी सारे शोज देखे होंगे जिसमें डिटेक्टिव्स क्या करते हैं? अपने माइंड का यूज करते हुए केसेस को सॉल्व करते हैं. जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो कल्प्रिट्स होते हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डिटेक्टिव्स कहा जाता है, ठीक है? और आप लोगों को जब डिटेक्टिव्स को आप देखते होंगे तो आपको डिटेक्टिव बनने का शौक भी होता होगा, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर डिटेक्टिव्स. हम लोग क्या है? सब डिटेक्टिव्स ही हैं, है ना? कौन सी चीज कहाँ पे कैसी क्या चल रही है, वी ऑल कीप दैट थिंग इन आवर यू नो इन आवर नॉलेज, कि कहाँ पे कौन कैसे क्या कर रहा है. सो डिटेक्टिव मीन्स क्या? जासूसी करना. डिटेक्टिव का मीन्स क्या होता है? जासूसी करना, इन्वेस्टिगेट करना किसी चीज को, राइट? चलिए, नेक्स्ट इज एक्सकर्जन. एक्सकर्जन क्या होता है? अ शॉर्ट ट्रिप. लेट्स सपोज कि क्या हुआ, इट वाज वीकेंड, इट वाज संडे, ठीक है? सो व्हाट यू थॉट, व्हाट यू डिसाइडेड लेट्स गो टू अ स्मॉल पिकनिक और अ शॉर्ट पिकनिक, ठीक है? शॉर्ट ट्रिप. सो व्हाट यू डिड, you went at 11 o'clock and you came back home at 4 o'clock. क्या बहुत लॉन्ग जर्नी पे गए थे क्या? नो. अगर आप 11 बजे जा रहे हो और 4 o'clock वापस आ जाते हो तो दैट इज नॉट अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है? वो एक लॉन्ग ट्रिप भी नहीं हुआ बेटा, ठीक है? और पिकनिक तो पूरे दिन का होता है, ठीक है? सो व्हाट यू डिड, यू वेंट फॉर द एक्सकर्जन. आप किस लिए गए हो? एक्सकर्जन के लिए गए हो, ठीक है? सो वेन एवर देयर इज संडे, ठीक है, सो व्हाट यू कैन रिक्वेस्ट टू योर पेरेंट्स कि लेट्स गो ऑन एक्सकर्जन. एक्सकर्जन मीन्स क्या? एक छोटी सी ट्रिप पे जाके आते हैं, यानी कि एक छोटी सी ट्रिप पे चल करके आते हैं. इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा सैर. सैर करने जाते हैं हम लोग, सो दैट इज एक्सकर्जन, ठीक है? तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कहीं पे जाके आना, कहीं पे एंजॉयमेंट के लिए या किसी पर्पस के लिए घूम के आना, ठीक है? चलिए,
नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रिजनर। प्रिजनर कौन होता है? अ पर्सन लीगली कमिटेड टू प्रिजन, मतलब कि जिस पर्सन को किसी केस के लिए, किसी क्राइम के लिए कहाँ कहाँ भेजा जाए? जेल में भेजा जाए, ठीक है, प्रिजन में भेजा जाए, तो उसको क्या कहेंगे? प्रिजनर कहेंगे, ठीक है। इन हिंदी वी कॉल इट कैदी। जिनको जेल में बंद रखा जाता है ना बेटा, वही क्या होते हैं? प्रिजनर्स होते हैं, ठीक है। जिनको जेल में बंद करके रख दिया जाता है, जिन्होंने कोई गलती करी थी, मिस्टेक करी थी या कोई क्राइम किया था, तो उनको जेल में डाल देते हैं। और उन्हीं के लिए क्या यूज करते हैं? वर्ड प्रिजनर यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रिजनर। प्रिजनर मीन्स व्हाट? अ पर्सन लीगली कमिटेड टू प्रिजन, यानी कि जिसको उसके क्राइम के लिए जेल में या प्रिजन में डाल दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज टिनेंट्स। टिनेंट्स मीन्स क्या होता है? रेंटर। मीन्स द वन हु इज लिविंग ऑन रेंट, या द वन हु इज यूजिंग द थिंग्स फॉर रेंट। लेट्स सपोज इफ एनी वन ऑफ यू इज लिविंग ऑन रेंट, है ना, आप कहीं पे रेंट पे रहते हैं। लेट सपोज आपका मेन हाउस तो कहीं और है, आपका मेन घर जो है वो विलेज में या कहीं पे है, एंड इन भिलवाड़ा यू आर लिविंग एज ए, मतलब इन रेंट हाउस, रेंटल हाउस। सो व्हाट यू आर द टेनेंट्स। आप क्या कहलाएंगे? आप टेनेंट्स कहलाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट द लैंडलॉर्ड इफ यू आर लिविंग इन द रेंटल हाउस, ठीक है। आप लैंडलॉर्ड नहीं है, ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे? टेनेंट्स हो जाएंगे या रेंटर हो जाएंगे। इन द सेम वे लेट सपोज कि आपके घर पे कोई, आप लैंडलॉर्ड हैं या कोई टेनेंट्स रहते हैं, कोई किराएदार रहता है या कोई किराए पे रहता है, ठीक है, रेंट पे रहता है। सो व्हाट दे विल बी टेनेंट्स। वो क्या हो जाएंगे? आपके टेनेंट्स हो जाएंगे, वो आपके रेंटर हो जाएंगे। यू विल बी द लैंडलॉर्ड एंड दे विल बी द टेनेंट्स, राइट। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ऑल द vocabularies are clear to you. Now what you have to do is you have to learn these vocabularies, right? I may ask you in the sessions, ठीक है, जब हम प्रेजेंट टेंस, सॉरी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस कर रहे होंगे, दैट टाइम these vocabularies will come and I may ask you what is the meaning of this and that. You will have to respond, right? चलिए, thank you everyone for attending the session. Have a great day. Bye bye.